टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। તણાવ વચ્ચે પાકિસ્તાન પર મોટા એક્શનની તૈયારીમાં ભારત નેવી ચીફ બાદ વાયુસેનાના પ્રમુખ એપીસી સાથે પીએમ મોદીની બેઠક। વાયુસેનાની તૈયારી વિશે પીએમએ કરી ચર્ચા। તો સિંધુ જળ કરાર રદ થયા બાદ પાકિસ્તાન સામે ભારતનો વધુ એક મોટું એક્શન। બગલિહાર ડેમ બંધ કરી અને ભારતે રોક્યું ચિનાબ નદીનું પાણી। તો નીતિન પટેલના પાકિસ્તાન પર પ્રહાર, કહ્યું ભારતે નિકાસ બંધ કરતા આપણું જ ખાનાર પાકિસ્તાન હવે ભૂખે મરશે। પાકિસ્તાનના પીએમ કટોરો લઈને દુનિયામાં ભીખ માંગે છે। સરદાર ધામના પ્રમુખ ગગજી સુતરિયાએ કહ્યું દીકરીઓ પાસે પણ રિવોલ્વર હોવી જોઈએ। કોંગ્રેસે કહ્યું ગુજરાતમાં દીકરીઓ સુરક્ષિત નથી, તો બીજેપીએ કહ્યું સૌથી સુરક્ષિત રાજ્ય ગુજરાત છે। તો હજુ 6 દિવસ સુધી ભર ઉનાળે માવઠાની આગાહી। 3 દિવસ બાદ ગાજવીજ પવન સાથે ભારે વરસાદની આગાહી। 16 જિલ્લામાં અપાયું ઓરેન્જ એલર્ટ। નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ કેપિટલ। હું છું કુશાગ્ર। સમાચારની શરૂઆત કરીએ ને વાત કરીએ કે હવે આતંકિસ્તાનનું તરસ્યું મરવાનું નક્કી જ છે। ભારતે બગલિહાર ડેમથી ચિનાબ નદીનું પાણી રોક્યું છે। સિંધુ જળ સંધિ પર ભારતે રોક લગાવતા પાકિસ્તાનના હાલ હવે બેહાલ થઈ ચૂક્યા છે। ભારતે પાણી રોકતા પાકિસ્તાનની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે। જેલમ નદી પર કિશનગંગા ડેમ પર આવું જ પગલું ભરવાનું પ્લાનિંગ છે। તો એક બાદ એક જે આકરા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા હતા અને તેને જ લઈને હવે ભારતે પાણી રોકતા પાકિસ્તાનની હાલત પણ ખરાબ થઈ ચૂકી છે। જેલમ નદી પર કિશનગંગા ડેમ કે જ્યાં પણ આ પ્રકારનું અત્યારે પાણી રોકવામાં આવશે। તો ભારત અત્યારે એક બાદ એક તમામ એક્શન છે તે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ લઈ રહ્યું છે। કૂટનીતિ અને સાથે સાથે જે રીતે અત્યારે તમામ પ્રકારના પ્રયાસો અત્યારે પાકિસ્તાનને ઘેરવાના પણ થઈ રહ્યા છે। અને આ જ મુદ્દે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। કર્નલ શૈલેન્દ્ર સિંહ કે જેઓ રક્ષા વિશેષજ્ઞ છે તે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે અને સાથે જ મનન ભટ્ટ રક્ષા વિશેષજ્ઞ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। આપનું સ્વાગત છે સર બંનેનું ન્યૂઝ કેપિટલમાં। તો એક બાદ એક જે નિર્ણયો લેવામાં આવી રહ્યા છે, જે સિંધુ જળ સંધિ હતો અને તેની જ અંદર અત્યારે હવે જે ચેનાબ નદી છે, જે 6 નદીઓમાંનું એક મુખ્ય નદી કે જેનું પણ પાણી અત્યારે જઈ રહ્યું હતું પાકિસ્તાન, અને તે પાણી હવે રોકી દેવામાં આવ્યું છે। મનન સર, સૌ પહેલાં આપ કહેશો આ એક બાદ એક જે અત્યારે જે રીતે પ્રેશરમાં પાકિસ્તાનને લાવવામાં આવી રહ્યું છે અને જે કડક વલણ ભારતે અપનાવ્યું છે તે વિશે શું કહેશો? જી, અત્યારે ભારત જે કરી રહ્યું છે, જે ડિપ્લોમેટિક એક્શન થઈ છે અને કે છે ને પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું કે વોટર એન્ડ બ્લડ કેનોટ ફ્લો ટુગેધર, લોહી અને પાણી સાથે ન વહી શકે। એટલે પાકિસ્તાન એમ ઈચ્છે કે ભારતના મોકલેલા પાણી પર એ નભે, એની ઇકોનોમી ચાલે, ત્યાંનું ફાર્મિંગ ચાલે અને એ આતંકને પણ ભારતમાં આપણે પાણી મોકલીએ એમના જીવન વ્યાપન માટે, અને બીજી તરફ એ લોકો આપણા લોકોનું લોહી વહાવે, એ બંને સાથે શક્ય નથી। એટલે ભારતે હવે પાણીને વેપનાઇઝ કર્યું છે। વોટર હેઝ બીન વેપનાઇઝડ। પાણીને શસ્ત્ર તરીકે ભારત ઉપયોગ કરી રહ્યું છે। ઉપર હિમાલયની પર્વતમાળાઓમાં પીરપંજાલ રેન્જીસની અંદર જે ગ્લેશિયરો અત્યારે ગરમીને લીધે પીગળી રહી છે, એને લીધે આ બધી નદીમાં પાણીમાં ફ્લો છે। એટલે અત્યારે પાકિસ્તાને જરૂર છે ત્યારે ભારતે પાણી રોક્યું છે, અને જ્યાં સુધી ઓલ્ટરનેટ વ્યવસ્થા નહીં થાય આ પાણીને દેશના બીજા ભાગો તરફ વાળવાની, ત્યાં સુધી પાણીને આપણે વેપનાઇઝ કરતા રહેશું અને એમને જરૂર હશે ત્યારે નહીં છોડીએ, અને આપણે એમને જરૂર નહીં હોય ત્યારે એક સાથે બલ્કમાં ડેમના દરવાજા ખોલી નાખવામાં આવશે, જે પાકિસ્તાનમાં પૂર લાવશે। એટલે પાકિસ્તાન હવે એક તરફ એમ કહી શકાય કે એકદમ અકાલ પડશે અને બીજી તરફ અચાનક પૂર આવશે। આ ઉનાળાના એ સમયે જ્યારે પાણીની પાકિસ્તાનને તાતી જરૂર છે એવે સમયે પાકિસ્તાન, કેમ કે જુઓ, તમે જ્યારે આતંક એક્સપોર્ટ કરો તો તમે કેવી રીતે ભારત પાસે માનવતા એક્સપેક્ટ કરી શકો? એટલે ભારતના પંજાબમાંથી પાકિસ્તાનના પંજાબમાં જતી જે નદીઓ છે એ બધી નદીઓના પાણી હવે ભારત એક પછી એક ડેમ્સને બંધ કરતા, ડેમના દરવાજા બંધ કરતું જઈ રહ્યું છે અને રોકી રહ્યું છે। એટલે ભારતે પોતાની સ્થિતિ, પોતાનો જે ઈરાદો છે એ સ્પષ્ટ કરી દીધો છે કે ફરીવાર એ જ વાત છે કે લોહી અને પાણી સાથે ન વહી શકે।
બિલકુલ બિલકુલ અને कर्नल शैलेंद्र सिंह પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। सिंह साहब, जिस हिसाब से अभी एक बाद एक जो निर्णय लेने में आ रही है और साथ साथ हाई प्रोफाइल अभी जो मीटिंग है वो भी चल रही है, पीएम मोदी कर रहे हैं। पहले तो जिस हिसाब से नेवी के चीफ के साथ एक बैठक हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक के बाद आज वापस से जो वायुसेना है उनके प्रमुख से ये आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जो एक्शन लेना है, एक्शन से पहले ये बैठकों का जो दौर चल रहा है, आप क्या कहोगे, ये क्या क्या संकेत दे रहे हैं आने वाले समय में? आपके अनुभव से क्या लग रहा है कि कैसे कैसे एक्शंस भारत ले सकती है? जय हिंद, नमस्कार। आई एम सॉरी, मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ेगा क्योंकि गुजराती थोड़ी बहुत समझ जरूर आती है लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। जहां तक बात है कि जो बैठकें हो रही हैं, अब ये दिखा रहा है कि मैटर जो है ना वो अब नॉर्मल और एबनॉर्मल नहीं रहा। अब ये मामला बहुत सीरियस हो गया है, क्योंकि अगर एक प्राइम मिनिस्टर अपने तीनों चीफ से मिलता है, सीडीएस से मिलता है, डिफेंस मिनिस्टर से मिलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब वो इंडिविजुअली एक एक से मिल रहा है और उसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी अब अंदर आ जाएगी। जब एक चीफ अकेले बात करता है तो वो अपनी एयरफोर्स की बात करेगा, अगर नेवी चीफ है तो वो नेवी की काबिलियत की बात करेगा। प्राइम मिनिस्टर अपने तरीके से समझना चाहेंगे कि किस हद तक हम जा सकते हैं, क्योंकि जॉइंट मैनशिप में तीनों मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना, कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। तो वो जो कल्पना है उसका कहीं कोई लिमिट नहीं है। मुझे लगता है जहां सारी की सारी पाकिस्तान की सोच खत्म होती होगी, वहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी की सोच शुरू होती होगी, क्योंकि उसी को कहते हैं कल्पना से परे। ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि जब इस तरह की सीरियस मीटिंग्स हो रही हैं और वो भी स्पेशली डिफेंस फोर्सेस के चीफ से, तो ये क्लियर दर्शाता है कि देश, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट एक मिलिट्री ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रही हैं। जो सुन सके वो सुन ले, जिसे नहीं सुनना वो अपने कान में तेल डाल ले और फिर सुन ले, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मामला हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक प्राइम मिनिस्टर मेंटेन कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई टेररिज्म पर है। वी हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन टेररिज्म, और इस टेररिज्म के पीछे जो आका है हम उस तक भी जाएंगे, उसे भी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अपने आप अब पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो करना क्या चाहता है। क्या वो आतंकवाद के साथ रहना चाहता है तो मारा जाएगा, इसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होगी, ये बड़ा क्लियर कट है। जो हमें पाकिस्तान में इन टेररिस्ट के साथ दिखता है, खड़ा होता है, वो अगर गवर्नमेंट है, आर्मी है, आईएसआई है, आपको मरना पड़ेगा। क्योंकि इस बार इस टेररिज्म का इलाज हम किसी गोली से नहीं दे रहे, अब हम आपको एक कैप्सूल देने वाले हैं जो कि एक बड़ा इलाज होगा, क्योंकि आपको वो इंजेक्शन पूरी तरह से ठीक करने का अब हम आपको देंगे। બિલકુલ, અને આપણી સાથે હવે લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અમૃતલાલ મકવાણા પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે। સર, આપનું સ્વાગત છે મકવાણા સર। જે રીતે એક બાદ એક અત્યારે બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે અને આ બેઠકોના દોર વચ્ચે હવે ભારતની તૈયારી છે તે કેવા સંકેતો આપી રહી છે? કારણ કે જે તૈયારી અત્યારે જોઈ રહ્યા છે, એક તરફ સૈન્ય અભ્યાસ, બીજી બાજુ જે બેઠકો છે તેની હવે ફ્રીક્વન્સી છે તે પણ હવે વધી ચૂકી છે। શું કહેશો આપ? जी, जिस प्रकार कर्नल शैलेंद्र ने बताया उनकी बात के साथ मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। बैठकों का जो दौर है वो एक युद्ध से पहले की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत इंटरनेशनल, नेशनल और यूं कहो कि नीचे लेवल तक, लोगों तक ये बातें चली जाए, लोगों को पता चले। इसलिए इस प्रकार की जो पहले सीसीएस की मीटिंग करी गई, सीसीएस की मीटिंग के बाद सीसीपीए की मीटिंग हुई, सीसीपीए के बाद सीसीईए की मीटिंग हुई। सीसीएस का मतलब होता है कि सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर्स एंड फाइनली सीसीएस। और इसके बाद ये जितने भी विरोध पक्ष है उनके नेताओं को भी बुला करके
ये मीटिंग करी गई, तो ये मीटिंगों से ये निकल करके आता। और अभी जो कर्नल शैलेंद्र ने बात बताई कि एक एक करके लोगों के साथ जिस प्रकार से मीटिंग की गई है, तो उसका मतलब यही निकलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और वो बड़ा इतना बड़ा होगा कि आने वाले कई पुश्तों तक उनकी कई सदियों तक याद किया जाएगा। ऐसा बड़ा होने वाला है। और अभी फिलहाल में जो दिखाई दे रहा है कि उसका जो आंतरयुद्ध चल रहा है, आंतरयुद्ध के अंदर आपने देखा होगा कि ये बालोच लिबरेशन आर्मी एक तरफ से उनको बलूचिस्तान में धो रही है, और जो पुख्ता समाचार मिला उसके अनुसार उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा जमा लिया है, और इसके बाद धीरे धीरे करके अपना कब्जा और आगे बढ़ाती जा रही है। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की सेना उस पर आए दिन हमले किए जा रही है। और तीसरा जो है, अभी पीओके की तरफ चारों तरफ आर्मी भारत की लगी हुई है, पाकिस्तान की लगी हुई है, नेवी ने समंदर से उसको घेरा हुआ है, और ऊपर से इसरो ने पल पल की खबर हमारे जो कमान अधिकारी है या कमांड सेंट्रल तक कंप्लीटली आ रही है। तो उससे आज जो पाकिस्तान है वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसके पास वॉर वेस्टेज है, वो भी धीरे धीरे करके खत्म होने जा रहा है। वॉर वेस्टेज जो एक आमनेशन और रसद होती है, जो आने वाले कितने दिन तक आपकी लड़ाई चलेगी, वो लड़ाई पर डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान अगर कल को लड़ाई के अंदर शामिल होता है तो 4 से 5 दिन का भी समय वो निकाल सके, 4 से 5 दिन का भी फ्यूल उसके पास बचा हो, या आगे रणनीति उसके पास किसी प्रकार की नहीं है। सेना में मनोबल उसका पूरी तरह से टूट चुका है। जिस प्रकार हमारी सेना का मनोबल इतना मजबूत है कि किसी भी हद तक हमारी सेना को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी छूट दे दी है कि आप टारगेट अपना निश्चित करो, समय अपना निश्चित करो, हम इसमें आपको कहीं भी इंटरफियर नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि सेना को पूरा अपनी तरफ से जोर दे दिए। ये नहीं कि पॉलिटिकल लीडर उसको संचालन कर रहे कि आप जाकर के ग्वादर पर अटैक करो, आप जाकर के कराची पे अटैक करो। नहीं, आर्मी जिस प्रकार से अपने आप को मानती है कि ये मेरा टारगेट है और इस टारगेट को मैं चूज करूंगी, नेवी अपने आप को डिसाइड करती है कि ये मेरा टारगेट है, मुझे कब अटैक करना चाहिए। आधा पाकिस्तान तो आज डर के मारे खत्म हो चुका है। आज पिछले 10-11 दिन से लगातार उनकी नींद उड़ी हुई है, जिनके लगातार बंकरों में पूरी रातें निकाली जा रही है कि भारत कब अटैक करेगा, भारत कब अटैक करेगा। तो ये चीज देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक तो वैसे ही कंगाल है और कंगाली में आटा गिला, और वो हालत उनकी आ चुकी है कि आज उसको आटा का पैसा भी नहीं है, दाल का पैसा भी नहीं है, और ऊपर से आपने वाटर स्ट्राइक कर दी। जो आज उनकी फसलें तैयार है, उन फसलों को एक जो लास्ट पानी मिलना चाहिए, वो पानी भी आज भारत ने सिंधु नदी जल समझौता जो निष्कासन करने के बाद वो भी उसको रद्द कर दिया गया है। तो आने वाले समय में वो पानी भी उसको मिलना बंद हो गया। और एक तरफ से नेवी ने उसको अरब सागर के अंदर ब्लॉकेड कर दिया है, एयर स्पेस को बंद कर दिया है। आप देखते तो जाओ कितने भारी एक साथ एक्शन किए हुए। पाकिस्तान ने हमारा एयर स्पेस बंद किया है तो हमें इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि हमारा थोड़ा सा घूम के जाएंगे, यानी कि 1 या 1.5 घंटे की सफर ज्यादा हो सकती है और थोड़ा सा बस। परंतु भारत ने उसकी पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद करने से उनको 5 गुना 6 गुना नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कि एक 5,000 की टिकट है तो कम से कम 25-30 हजार की टिकट उनकी हो जाएगी, और इसके अलावा इतना फ्यूल लगेगा, उतने ज्यादा घंटे लगेंगे, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ होने वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तमाम बिजनेस को भी बंद कर दिया गया है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ये कि जो एक लड़ाई से पहले की एक प्रक्रिया होती है कि किसी भी देश में अगर विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि आपकी विदेश नीति को मजबूत कीजिए, सारे लोगों का सपोर्ट लीजिए, दुनिया के देशों का सपोर्ट लीजिए, और इसके बाद उनकी आर्थिक कमर को तोड़ दीजिए। आज इकोनॉमिकल भी भारत ने ये जो पुख्ता सबूत दे करके वर्ल्ड बैंक के पास भी उनको बता दिया कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, इसके बाद उसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। तो ये हालात को देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी पाकिस्तान कहीं से भी बचने वाला नहीं है। क्यों नेवी के अंदर हमारी सबमरीन ने कब्जा ले लिया है, PI-8 उड़ रहा है, जो सबमरीन हंटर
कि कहीं भी अगर समंदर के अंदर, अरबी समंदर में उनका, पाकिस्तान का अगर सबमरीन दिखाई देगा या कोई टॉर्पीडो दिखाई देगा तो ऊपर से ही एक ही बार में उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उतनी वो ताकत हमारे पास है। इसके अलावा अमेरिका के साथ हमने जो एक एग्रीमेंट किया, जिस एग्रीमेंट के अनुसार हम जो है इंफॉर्मेशन साझा कर सकते हैं, वो कोड लैंग्वेज के अंदर। तो अगर समंदर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट हो रहा है तो अमेरिका का जो सैटेलाइट ऊपर लगे हुए हैं, हमारे सैटेलाइट एज इट इज लगे हुए 22-23 हमारे डिफेंस के सैटेलाइट लगे हुए, वो पल पल की जानकारी दे रहे। 1 मीटर एरिया में क्या मूवमेंट हो रहा है उसकी सटीक फोटोग्राफ लेकर के, वो फोटोग्राफ हमारे कमांड कंट्रोल तक आ रही है, सेंटर तक आ रही है। तो उससे हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अमेरिका के पास जो आधुनिक से आधुनिक उनके जो सैटेलाइट हैं, उन सैटेलाइट के द्वारा समंदर के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उनका भी पूरा डेटा लग करके, वो डेटा उनके कमांड सेंटर में आता है। वही डेटा को हम उसको अपने पास लेकर के कोडिंग लैंग्वेज में वापस लेकर के हम उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज पाकिस्तान की हालत उतनी खराब हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी देश उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा OIC 57 इस्लामिक कंट्री है, उसमें से कोई कंट्री उसको इकोनॉमिकली मदद करने को तैयार नहीं है, सैन्य देने को तैयार नहीं है। तो ये हालत आप देख सकते हैं कि आज पाकिस्तान जो है दुनिया के देशों से अलग थलग पड़ गया है। आज उसको कोई 2 पैसा देने को तैयार नहीं है। एज इट इज उसकी सेना इतनी मर चुकी है, ये कहा जाए कि सेना के अंदर उसका मोराल में इतनी कमी आ गई है कि 5-7 हजार लोगों ने रेजिग्नेशन डाल दिया है। बिल्कुल। दूसरा, उनके कमांडर के खिलाफ उनको अविश्वास पैदा हो गया कि मुनीर जो है इनका शोषण कर रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। बलोच के साथ तो एज इट इज इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो हालत को देखते हुए आने वाले समय में इतना बड़ा एक्शन होगा कि पाकिस्तान की पुश्तों तक उसको याद किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है वो एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। तो आज जिस प्रकार से मीडिया के लोगों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा यही सवाल पूछा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कब करेगा। बिल्कुल, इस पे भी आएंगे आगे। अटैक तो हो चुका है, अटैक हो चुका है ऑलरेडी। आप देख रहे हैं उसका परिणाम चारों तरफ से। एक तरफ से पानी बंद कर दिया, हाहाकार हो गया। दूसरी तरफ से उसकी आर्थिक पायमली की जा रही है, वहां उसकी हालत खराब हो गई। एयर स्पेस बंद कर दिया, वहां से उसको ताला लग गया। एक तरफ से समंदर में उसको ब्लॉकेड कर दिया। तो इसके अलावा अभी एक्शन सारे धीरे धीरे होते हैं। एकदम एक्शन करने से पूरी दुनिया जो है बिल्कुल वो समझने लगेगी कि भी क्या हो रहा है। तो बिल्कुल, भारत की ताकत दुनिया को पता होना चाहिए। બિલકુલ એક બાદ એક જે આ કૂટનીતિક રીતે ભારત એક દબાણ કરી રહ્યું છે તે પણ અત્યંત જરૂરી છે। મનન સર, જે રીતે એક બાદ એક આ કૂટનીતિક દબાણ લઈ લો કે પછી આંતરરાષ્ટ્રીય મંચોની ઉપર જે પાકિસ્તાનને આઇસોલેટ કરવાનું હોય તો કે પછી આપણે સૈન્ય કાર્યવાહી, બંનેમાં શું સમાનતા અને આ રીતે શું ભારત કેવી રીતે વિજય મેળવી શકે? આ પ્રેશર બિલ્ડઅપની ટેક્ટિક્સ છે। જો પાકિસ્તાને જે કર્યું ને એના પછી 2 દિવસની અંદર પાકિસ્તાની સેનાનું બિલ્ડઅપ થયું, પાકિસ્તાની નૌસેનાનું બિલ્ડઅપ થઈ ગયું। એટલે એ જોતા એવું લાગે છે। એક અનુમાન હું લગાવી રહ્યો છું, આપણા નિષ્ણાતો પણ એક અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે પાકિસ્તાને જનરલ અસીમ મુનીરે વોર ગેમ કરી રાખી હતી આ આતંકી હુમલાને। એટલે એને ખબર છે કે ભારત, આજનું ભારત એવું છે કે જ્યારે જ્યારે ભારત પર કોઈ આતંકી હુમલો થાય ત્યારે ભારત પાકિસ્તાનને ની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરશે। એટલે ભારત કાર્યવાહી કરશે એની બધાને ખબર હતી। આજની જે સરકાર છે કુશાગ્રજી, બહુ સમજવા જેવું છે આપણે બધાએ, અને ખાસ કરીને આપણા દર્શકોએ, કે એટલે પાકિસ્તાન તૈયાર બેઠું હતું, પાકિસ્તાન ઈચ્છતું હતું કે એના તૈયાર કરેલા ટ્રેપમાં ભારતીય સેના જાય અને ફસાઈ જાય, પણ ભારતે એવું ન કર્યું। એને બદલે આપણે એને ચેકમેટ કરી દીધા અને જે ડિપ્લોમેટિક નિર્ણયો લેવાયા, જે સ્ટ્રેટેજિક નિર્ણયો લેવાયા, એને લીધે એક બાદ એક પાકિસ્તાન પર પ્રેશર જે છે ને બિલ્ડઅપ થવા માંડ્યું। અત્યારે તો હાલત એવી છે કે એણે જે મિલિટરી બિલ્ડઅપ કર્યું છે લાઇન ઓફ કંટ્રોલ પર, બહુ મલ્ટિપલ એક્શન્સ પાકિસ્તાને લીધા છે। એમાંથી સૌથી પહેલું કે એણે
લાઇન ઓફ કંટ્રોલ અને ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર પર સીઝ ફાયર વાયોલેશન્સ ચાલુ કર્યા. એટલે ભારતીય સેના જો કોઈ એને શું છે, એને વોર ગેમ એટલું કર્યું હતું, એને ખબર હતી કે ભારત એર સ્ટ્રાઇક અને સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી શકે અને નૌસેના દ્વારા એક્શન કરી શકે. એટલે એણે આ ત્રણેય જગ્યાએ એટલે કે અરબ સાગરમાં સૌરાષ્ટ્રની આસપાસ, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની આસપાસના દરિયા કિનારે એની નૌસેનાને એક્ટિવ કરી દીધી. એના નૌસૈનિક જહાજો ત્યાં આવ્યા. હમણાં 2 દિવસ પહેલાં એમણે એક મિસાઇલ ફાયર કર્યું. બીજી તરફ એણે એના F-16ને લાઇન ઓફ કંટ્રોલની આજુબાજુ ઉડાડ્યા અને એવી અફવાઓ પાકિસ્તાનમાં છૂટી મૂકી કે એમણે એક રાફેલને તોડી પાડ્યું છે. એટલે દિવા સ્વપ્નોમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકો રાચી રહ્યા છે. વળી એમણે એમની આર્મીને ફોરવર્ડ બિલ્ડઅપ કર્યું લાઇન ઓફ કંટ્રોલ અને બોર્ડરની આસપાસના ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડરની ભારતને લગતી આસપાસ જે બોર્ડર છે એના આસપાસના વિસ્તારોમાં. અને જેથી ભારત જો કોઈ સૈન્ય કાર્યવાહી કરે કે પછી ક્રેક ટીમ મોકલે આતંકી ઠેકાણા ઉપર હુમલા કરવા માટે તો એમને પણ ખાળી શકાય. એટલે આ બધી તૈયારી એણે કરી હતી. એટલે ભારતને એના મનમાં એવું હતું કે ભારત 2 થી 3 દિવસ યા તો વધુમાં વધુ 10 દિવસમાં અચાનક હુમલો કરશે અને એ લોકો એને માટે તૈયાર હતા, કેમ કે આતંકી હુમલો તો એમણે જ પ્લાન કરીને કર્યો હતો. હવે ભારતે સૈન્ય કાર્યવાહીમાં ઉતાવળ કરવાને બદલે ભારતે ડિપ્લોમેટિક કાર્યવાહી કરી, જેને માટે પાકિસ્તાન સદંતર તૈયાર નહોતું. એ લોકો ધે કોટ ઓન ધેર લેફ્ટ ફૂટ. એ લોકો ફસાઈ ગયા કે એક પછી એક ભારત જે એક્શન્સ લેવા માંડ્યું, ડિપ્લોમેટિકલી પાકિસ્તાનને આઇસોલેટ કરવા માંડ્યું. અને સાહેબ આજના જે નિર્ણયો છે એ તો આજે પાણીને જે રીતે ભારતે વેપનાઇઝ કર્યું છે એ તો બહુ મોટો માસ્ટર સ્ટ્રોક છે. પાકિસ્તાનની 80% જે ઇરિગેશન છે એ આ 3 નદીઓ જે વેસ્ટર્ન રિવર્સ છે, ઝેલમ, ચિનાબ અને સિંધુ, એના પર નભે છે. તમે જ્યારે આ 3 નદીઓનું પાણી બંધ કરો, હવે ઓકે, ઓલ્ધો આપણે એને લાંબો ટાઈમ, કેમ કે આપણા જે ડેમ્સ છે એ પાણીને ઉપયોગ કરવા માટે નથી બન્યા, કેમ કે આપણને આ 3 નદીઓના પાણીના ઉપયોગની પરમિશન સિંધુ જળ સંધિ પ્રમાણે નથી. આપણે ઈસ્ટર્ન રિવર્સ જે છે, સતલજ, બિયાસ અને રાવી, આ 3ના પાણીનો ઉપયોગ કરી શકીએ. એટલે એ નદીઓ, એ ડેમ્સ પર સ્ટોરેજ કેપેસિટી મોટી છે ને આપણે કેનાલ બનાવેલી છે. પરંતુ કિશનગંગા અને આ બધા ડેમ પર ભારતને કેમ કે ઉપયોગની પરમિશન નથી, એટલે ભારતેની સ્ટોરેજ કેપેસિટી, રિઝર્વોયર્સ ભલે નાના હોય પણ પાકિસ્તાનને વોર્નિંગ આપ્યા વિના, ફ્લડની વોર્નિંગ વિના આપણે ગમે ત્યારે પાણી ખોલશું, ગમે ત્યારે બંધ કરી દેશું. એટલે પાકિસ્તાનમાં બહુ ડિવાસ્ટેટિંગ ફ્લડ્સ અને ભયંકર દુકાળ આવવાની વકી સર્જાઈ રહી છે. પીવાના પાણીની તંગી, અનાજની તંગી. એટલે લોંગ ટર્મ ઇફેક્ટ જુઓ તો 5 વર્ષની અંદર પાકિસ્તાન એક રણ પ્રદેશ બની જાય એવી ક્યાંક ને ક્યાંક શક્યતા સેવાઈ રહી છે. કેમ કે ભારતથી જતા પાણી પર આ 3 નદીઓ આપણે વાત કરીએ એવી રીતે ચેનાબ, ઝેલમ અને સિંધુ, એ પાણી પર સંપૂર્ણપણે ડિપેન્ડન્ટ પાકિસ્તાને ભારતની જેમ કોઈ નહેર વ્યવસ્થા કે ઇરિગેશન સિસ્ટમ પેરેલલ વિકસાવી નથી. બીજું કે આ આવતા પાણીની ઉપર એમણે 2 ડેમ બનાવ્યા છે અને એનાથી ઇલેક્ટ્રિસિટીના કન્ઝપ્શન, એ જે પાવર બને છે એના પર પણ એ લોકો ડિપેન્ડન્ટ છે. એટલે એમની પાવર સિસ્ટમમાં બ્રેકડાઉન આવશે, એમને પાણી મળતું બંધ થશે. વોર્નિંગ વિના જ્યારે પાણી ભારત છોડે તો એને લીધે ફ્લડ્સ એટલે કે પૂર આવશે, કેટલા લોકો ડિસ્પ્લેસ થશે. એટલે પાકિસ્તાન જ્યારે આતંકને વેપનાઇઝ કરીને ભારત વિરુદ્ધ ઉપયોગ કરી રહ્યું છે ત્યારે હવે ભારતના પગલાં એ પાકિસ્તાને વોર ગેમ જે નહોતું કર્યું એ બધું ભારતે કર્યું છે. બહુ સમજવા જેવું છે કે તમારી સામે એક ચેસનો પ્લેયર બેઠો હોય ને એ પ્લાન કરીને બેઠો હોય કે તમે રાણી ચાલશો અને તમે ઘોડા અને પાયદળથી જ્યારે એ ચેસના પ્લેયરને ગેમમાં માત આપવાનું ચાલુ કરો ને ત્યારે એની શું પરિસ્થિતિ થાય, એ પરિસ્થિતિ આજે પાકિસ્તાનના હુકમરાનોની છે, પાકિસ્તાનના સત્તાધારી લોકોની છે. बिल्कुल. और कर्नल शैलेंद्र सिंह भी अपने साथ जुड़े हुए हैं. सिंह सर, जिस हिसाब से चाइना एंगल की बात करते हैं, पाकिस्तान के उनके रिलेशंस कैसे, उस विषय पे आप क्या कहोगे? और जो एक व्हाट शुड बी इंडियाज रेड लाइन, एक रेड लाइन क्या रहेगी उस हिसाब से? देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है, मैं आपको बड़ा एक सीधा एग्जांपल देता हूं, उससे सब कुछ समझ आ जाएगा. क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का पार्ट होता था. ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर बनकर आई थी और राज कर बैठी. चाइना बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी पर चल रहा है कि आप किसी के साथ भी ट्रेड करें, उनका डेप्थ इतना हाई करें कि वो कंट्री अपनी जमीन आपके पास गिरवी रखती चली जाए और कुछ दिन में आप उसको ओवरटेक कर लें. चाइना की जो लस्ट है, जो लालच है जमीन का,
जो एडिक्शन है जमीन का, किसी कंट्री को टेक ओवर करने का, वो कभी आप रोक नहीं पाएंगे। इस समय अगर हम चाइना को बड़े निष्पक्ष होकर इवेलुएट करें, इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, लेकिन जो सपोर्ट होता है वो किस तरीके का होता है? एक होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या फाइनेंशियल सपोर्ट वो दे रही है? इस समय तो नहीं दे रही है। इक्विपमेंट सपोर्ट वो जरूर दे रही है, लेकिन वो उसमें बिजनेस कर रही है, इसको आप मना नहीं कर पाएंगे। वो टोटल बिजनेस चल रहा है, सीधी बात ये है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कल किसी भी तरह से पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करता है, तो आपको लगता है चाइनीज सोल्जर आकर उनके तरफ से लड़ेगा? वो बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। आपको लगता है कि उसके एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से उड़ान लेकर पंजाब में अटैक कर लेंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर वो करेगा भी, जो कि उसका भी स्टेक बहुत हाई है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहा, उसके जो वेस्टेड इंटरेस्ट पैसों में ट्रेड में हमारे साथ हैं, वो कोई कम अमाउंट के नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकता है कि चलिए जी, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पर, चाइना के हर बॉर्डर पर जो हमारी फौज लगी हुई है, हम उसे वापस ना ला पाए और कहीं और इस्तेमाल कर पाए। इससे ज्यादा और क्या करेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है। परमानेंट 5 मेंबर में से 4 ऑलरेडी इंडिया को सपोर्ट कर चुके हैं। सो हो ही नहीं सकता कि एक के कहने से वीटो जरूर हो जाएगी, लेकिन एक के कहने से कोई भी रेजोल्यूशन इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि 4 लोग अपने आप में इंडिया के साथ खड़े हैं। देखिए, बड़ी बात समझने की ये है कि आज पाकिस्तान के साथ जो भी खड़ा होगा, और वो कम है इसलिए मैं गिनवा भी सकता हूँ, तुर्की हो गया, चाइना हो गया, अजरबैजान हो गया, और कौन है? और गिनिए, मैं आपको और गिना देता हूँ। जैश हो गया, हमास हो गया, ये भी अपने आप में कंट्री है। सो अपने आप में अगर पाकिस्तान गिनती बढ़ाना चाहता है तो तकरीबन 27 ऐसी तंजीम हैं जो वहां पर हैं। तो यस, आप अगर आपका एग्जिस्टेंस उनके वजह से है तो आप उन्हें कैलकुलेट कर लो कि वो आपको सपोर्ट में है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी तरह से कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम पाकिस्तान के साथ उसके टेररिज्म में खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और हमारी लड़ाई जो कि सपोर्ट पा रही है, वो सिर्फ इसीलिए पा रही है क्योंकि हमने ये लड़ाई डिक्लेयर करी है टेररिज्म के ऊपर और टेररिज्म के आकाओं के ऊपर। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी, आईएसआई उस टेररिज्म को बनाती है, पालती है, ये उनका अपना नजरिया है। हम हर उस आदमी को मारेंगे, हम हर उस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्राइक करेंगे जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, चाहे वो मास्टरमाइंड हो, वो सुपर माइंड हो, वो कंप्यूटर माइंड हो, मुझे नहीं पता कौन सा माइंड हो, बट ऑल सच माइंड्स विल बी डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया। और सबसे बड़ी बात जो आजकल लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी स्ट्रांग है, इंडियन आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग है वो है हमारे देश की आवाम। ये जो 140 करोड़ लोगों की आवाज है ना, जो इस समय मांग रही है कुछ, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी आवाम, क्योंकि वो इस समय पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं चल रही है। आपको क्योंकि लोग प्रूफ मांगते हैं, इसलिए मैं दे रहा हूं कि इमरान खान के प्रोटेस्ट में आपने आर्मी के घर जला दिए, कोर कमांडर का घर जला दिया, उसको लूटपाट कर ली, एयरफोर्स स्टेशन के बाहर लगे हुए जहाज को जला दिया। ये सब दिखाता है कि आवाम एक्चुअली समझती सब है, कर नहीं पाती क्योंकि दबाव में है। एक गन सामने देखकर कोई भी आदमी बात वही करेगा जो वो आर्मी बोलेगी। वहां की सरकार को नवाज शरीफ ने क्या एडवाइस दी? हिंदुस्तान से मत उलझो शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ घूम रहे हैं दुनिया भर में डिप्लोमेसी के नाम पर कि भाई मुझे सपोर्ट दो। कौन सा सपोर्ट दो? किसका सपोर्ट दो? क्या आतंकवाद में आपके साथ खड़े होने का सपोर्ट दो? और उनका जो डिमांड है कि भारत को रोको रोको रोको, भाई किस चीज से रोको? किस मुंह से कोई कंट्री ये बोल सकता है हमें कि नहीं 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 टेररिज्म के ऊपर स्ट्राइक मत करो? हाँ, वो एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि वो टेररिज्म के साथ है। हमारी लड़ाई टेररिज्म और टेररिज्म के आकाओं के साथ है। रोक सको तो रोक लो। जो भी अपने आप में है इसके पीछे, वो अपने आप को इनसिक्योर करेगा ही करेगा। बट सबसे बड़ी बात, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं होगा। ये क्लियर कट है कि उसको मरना पड़ेगा। बिल्कुल।
बिल्कुल। मकवाना सर, एक जिस हिसाब से ये पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर है बीच में वो बहुत लंबी है, गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक वो जाती है, और साथ साथ अगर अपन देखा जाए तो कौन से ऐसे क्षेत्र है कि जहाँ पे भारत ने पाकिस्तान से टैक्टिकल लीड ले रखी है, जहाँ पे भारत को अब वहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन से वैसे क्षेत्र रहेंगे बॉर्डर के? ये सबसे पहले जब आपने बॉर्डर की बात करी है तो भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर बॉर्डर लाइन को साझा करती है। उसमें से 740 किलोमीटर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये शुरुआत होती है जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग ये जो लद्दाख है, इसको मिला करके 1,227 किलोमीटर है लंबी लाइन। इसके बाद आप नीचे आइए, पंजाब के साथ 553 किलोमीटर लाइन को हम साझा करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। फिर आप राजस्थान में आइए, राजस्थान 1,037 किलोमीटर लाइन उनके साथ साझा करते हैं, और गुजरात जो है वो 508 किलोमीटर लाइन को साझा करते हैं। अब आइए समुद्री सीमा की तरफ, तो समुद्री सीमा जो है टोटल 7,216.6 किलोमीटर पूरा लाइन जो है पूरी तकरीबन 7 देशों के साथ इस जो है समुद्री सीमा को हम साझा करते हैं। लेकिन खास करके पाकिस्तान के साथ गुजरात का जो समुद्री एरिया है वो 1,600 किलोमीटर है, और उसमें हमारा जो विवादित एक मुद्दा जहां से जो चल रहा है, कच्छ भुज एरिया में जब जाओगे तो एक सरक्रिक करके एरिया है, वो तकरीबन जो है 90 किलोमीटर एरिया है, और वो 90 किलोमीटर एरिया में उसको 2 भागों से बांटा गया है कि पूर्वी वाला जो भाग है वो भारत उसको अपना मानता है, और उसके बीच में से जो एक रेड कलर की लाइन निकलती हुई सिंध तक जाती है, वो सरक्रिक का एरिया अभी भी पिछले 12 मीटिंगें हो चुकी है, लेकिन उस मुद्दे पर उसका हल नहीं आया है। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हमारी नौसेना और बिल्कुल सर एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण समाचार साમે આવી રહ્યા છે તેની પર નજર કરી લે, જ્યાં આવતીકાલે જાહેર થવાનું છે ધોરણ 12નું પરિણામ, અને ધોરણ 12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર થશે સવારે 8 કલાકે વેબસાઇટ પર આ પરિણામ જોઈ શકાશે, અને સાથે GSEB.org પર આ વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું પરિણામ છે તે જોઈ શકશે। પહેલીવાર વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ એક સાથે જાહેર થવાનું છે। તો આ તરફ 63 57 30 09 71 પર વોટ્સઅપ કરીને પણ પરિણામ આપ મેળવી શકો છો। તો સાથે ગુજકેટનું પરિણામ પણ વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામ સાથે જાહેર થવાનું છે। તો એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, અને સાથે જ આવતીકાલે જે 12નું પરિણામ છે, ધોરણ 12નું પરિણામ જાહેર થવા જઈ રહ્યું છે। ધોરણ 12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ એક સાથે જાહેર થશે સવારે 10:30 કલાકે। આ વેબસાઇટ પર આપ પરિણામ જોઈ શકશો। સવારે 10:30 કલાકે પરિણામ છે તે આપને વેબસાઇટ પર આપને મળી જશે, અને વેબસાઇટ જે GSEB.org આ વેબસાઇટ પર જઈ અને વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું પરિણામ જોઈ શકશે, અને પહેલીવાર વિજ્ઞાન અને જે સામાન્ય પ્રવાહ છે બંનેનું પરિણામ છે તે એક સાથે જાહેર થવા જઈ રહ્યું છે। અને આની સાથે સાથે આપ પરિણામ વોટ્સઅપ પર પણ મેળવી શકો છો, જ્યાં 63 57 30 09 71 પર વોટ્સઅપ કરી અને આપ પરિણામ પણ વોટ્સઅપ પર મેળવી શકશો। તો ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેનો તણાવ, અને આપણે વાત કરી રહ્યા હતા LOCની સાથે સરહદી બોર્ડરની કે જે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે જે અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે, કયો તણાવ ચાલી રહ્યો હતો। આપણી સાથે લેફ્ટિનેન્ટ કર્નલ અમૃતલાલ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। મકવાણા સર, आप बात कर रहे थे, वो कृपया कंटिन्यू करिएगा जिस हिसाब से आप जानकारी दे रहे थे LOC की और उसकी। जी सर। जी हाँ, तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि ये विवादित मुद्दा जो है सरक्रिक का है, वो पिछले कई सालों से चल रहा है कि 1971 से अभी तक इनकी 12 मीटिंग हो चुकी है। कोई अभी धीरे धीरे करके और बातें करते हुए उसके अंदर कोई इतना जैसा चाहे उतना उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि आज
जिस प्रकार पाकिस्तान ने अपना रुख रखा है, भारत ने जिस प्रकार कड़े से कड़े निर्णय लेकर के पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली उनको बनाने के लिए, स्ट्रेटेजिकली इस पर चारों तरफ से अटैक करने के लिए वो जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो एक अद्भुत प्रोग्राम है। कारण आज भारत जो है अति आधुनिक हथियारों से लैस हैं। आज भारत के पास दुनिया का ये चौथे नंबर की जो एयरफोर्स है, इतनी बड़ी एयरफोर्स और इतने लेटेस्ट जहाज हमारे पास है, यानी कि रफाल के पास वो ताकत है कि किसी भी लो लेवल में उड़ान भर सकता है, हाई लेवल में उड़ान भर सकता है, और उसके अंदर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बॉम्ब की उसके अंदर व्यवस्था दे रखी है। तो ये इस प्रकार का जो एक हमारे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण आज पाकिस्तान के पास इनका कोई तोड़ नहीं है। दूसरा, हमारे पास ब्राह्मोस मिसाइल है। ब्राह्मोस मिसाइल का भी पाकिस्तान के पास अभी तक कोई तोड़ नहीं है। आज ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो उसका थोड़ा मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि ये ब्राह्मोस मिसाइल है, ये भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मॉस्को रिवर, जो कि रशिया में उच्च अभ्यास के लिए जाके आया था, 2K-22M तुंगुस्का वेपन सिस्टम का कोर्स मैंने 5.5 महीना वहां पे किया है मॉस्को में। तो ये मॉस्को जो रिवर है, दोनों के नाम से इस मिसाइल का नाम रखा गया है। और इतनी पावरफुल मिसाइल है कि ये यहां से 450 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक सटीक वार कर सकता है। अगर दुश्मन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मिसाइल आ रही है तो उस मिसाइल को मारने की अगर कोई क्षमता है तो ये आधुनिक से आधुनिक जो हमारे पास मिसाइल लगी है ब्राह्मोस मिसाइल है। इसके अलावा भी कई मिसाइलें हैं हमारे पास। आकाश मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। मैं मिसाइल का नाम गिनती कराने लगाऊंगा तो लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो इतनी आधुनिक से आधुनिक मिसाइलें हैं जो यूं कहा जाए कि 3 लेयर हमारे पास जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा इजराइल के अंदर एक आयरन डोम लगा दिया तो जितनी भी मिसाइल आएगी तो वो अंदर गिरने की बजाय उनको वापस टकरा करके वो वहां पे बीच रास्ते में उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो कुछ उससे भी आधुनिक अगर हमारे पास कोई वो शक्तिशाली कोई मिसाइल है तो वो है ब्राह्मोस मिसाइल। किसी भी प्रकार का कोई भी हमला अगर होता है तो उसको रोकने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो ब्राह्मोस मिसाइल ऐसी भारत के पास। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पर्याप्त मात्रा में है, कितनी रेजिमेंट है ये नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये एक देश का बहुत ही बड़ा वो चीज है। तो वो हम इससे पूरी तरह से लेस है, पूरी तरह से सक्षम है। आज भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो समुद्र के अंदर उतारा है, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य। INS विक्रांत का जो कैपेसिटी है वो उसके अंदर MiG-29 के तकरीबन जो है 30 से लेकर के 36 एयरक्राफ्ट को ले जा सकते हैं। उसके अंदर रडार सिस्टम ले जा सकते हैं, उसके अंदर हेलीकॉप्टर्स पूरे ले जा सकते हैं और तकरीबन 1600 से ज्यादा नौसैनिकों को इस कैरियर के अंदर ले जा सकते हैं। और 6 महीने तक अगर चलता रहेगा उसकी उतनी कैपेसिटी है। और पर आवर जो है वो तकरीबन 58 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से समंदर में चलेगा। इतना हाई कैपेसिटी वाला अगर कोई हमने जो जहाज बनाया है जो 6 महीने का रसद लेकर के चलेगा, 6 महीने तक कंटिन्यू समंदर में चलता रहेगा। और सिमिलर इसका जो वजन है वो 4500 टन का इसके अंदर जो वजन दिया हुआ है, वजनी इतना ताकतवर भयंकर, मतलब दुश्मन के एरिया को पूरा आज अरब सागर को उसने घेर करके रखा हुआ है कि मजाल है कोई बेड़ा उसके अंदर आ जाए। और उसकी जो उड़ान है उस तरीके से बनाई है कि हमारे अगर रफाल को भी उतरना है, अभी रफाल हमने मरीन रफाल भी जो फ्रांस से खरीदा है वो आने वाले कुछ समय के अंदर भी रफाल आ जाएंगे और नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। तो ये दो जो है, इसके अलावा हमारे पास जो एंटी सबमरीन यानी कि PI-8 जो अमेरिका से हमने खरीदा हुआ एक जहाज है जो सबमरीन हंटर है। वो सबमरीन हंटर उड़ेगा आसमान में
और निगरानी होगी समंदर के अंदर। हम पाकिस्तान के साथ जो 1600 किलोमीटर जो एरिया है, समुद्री एरिया, और उस एरिया के अंदर सबसे ये 2 पोर्ट है। पहला पोर्ट है आपका कराची, जो कि ओखा से तकरीबन 350 से लेकर के 400 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा जो पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, जो सिंध में आया, बलूचिस्तान में आया हुआ। तो ये जो है तकरीबन 1000 से 1100 किलोमीटर कच्छ एरिया से अगर मैं कहूं, कांडला से, तो उतनी दूरी पर है। तो ये दोनों को अगर ब्लॉकेट कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है तहस नहस हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान का जितना बिजनेस है ये कराची बंदर से चलता है, जो पिछली बार ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा पूरा उसका नामो निशान हमने मिटा दिया था, कितने दिनों तक वो जलता रहा था। तो वो ताकत आज भारत के पास है, आज वो नेवी के पास है। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेवी के जो एडमिरल है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को बुलाया, उनके साथ मीटिंग करी दिनेश त्रिपाठी सर के साथ, और उन्होंने पूरा जायजा लिया कि आप क्या एक्शन करने जा रहे हैं। एयरफोर्स के जो एपी सिंह है, अमरजीत सिंह, उनको बुलाया गया और उनके साथ बैठ करके सारा स्थिति का जायजा लिया कि आपको और क्या हथियार चाहिए, किस प्रकार से आप अटैक करने जा रहे हैं। तीसरा, थल सेनाध्यक्ष जो है द्विवेदी साहब को बुलाया गया, उनके साथ भी चर्चा करते हुए सारी चीजों का पूरा एक पल पल की रिपोर्ट अगर ले रहे हैं, सारा मॉनिटरिंग भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि किस प्रकार से एज इट इज डिप्लोमेटिकली हमने एक्शन कर दिया। ऊपर से इसरो एंड हमारा DRDO के द्वारा जो हमने मिलिट्री स्पाई आसमान के अंदर जो रखा हुआ है, आज 25 से 30 वो ऊपर घूम रहे हैं, पल पल की खबर कमांड कंट्रोल में जा रही है। पाकिस्तान की मूवमेंट अगर 2 इंच भी हुई है, उसकी फोटो खींच करके सीधी आ जाती है। तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, AI का जमाना है, कोई कहीं बच नहीं सकता है कि मैंने ये काम नहीं किया है, तुरंत उसकी फोटो आ जाती। जो बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी, उनका सारा वीडियो के साथ सारी फोटोग्राफ आई हुई। इसके बाद जहां उड़ी अटैक किया था, उड़ी अटैक की भी सारी स्ट्राइक के फोटोग्राफ हमारे पास मौजूद है। तो इस प्रकार का आज भारत की जो टेक्नोलॉजी अगर नेवी में देखा जाए, एयरफोर्स में देखा जाए, और आर्मी के पास आधुनिक से आधुनिक हमारे पास के वज्र 9 जो टैंक्स हैं, जो तोप है, जो उनके चक्के छुड़ा सकती है, जो 99 युद्ध के अंदर आपने देखा होगा कि बोफोर्स ने इतना जबरदस्त कार्य किया था। तो हमारी टैंक गन इतनी पावरफुल है और वो इंडिजिनस है, कहीं हमें इधर उधर जाकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप यहाँ बना सकते हैं उसको, अपने आप यहाँ सारा रातों रात। अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी छुट्टी को रोका गया है कि भी हमें मास प्रोडक्शन करना होगा, तो आपको डे नाइट काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भारत के अंदर जितनी भी हमारी आयुध फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनका काम डे नाइट चल रहा है, डे नाइट यही हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस देश के साथ डील करते हैं सबसे पहले यही कहते हैं। जैसे रशिया के साथ हमने डील करी तो उन्होंने कहा कि भाई जो एयरक्राफ्ट हम आपसे खरीदेंगे, या हम राइफलें, जैसे अभी AK-203 राइफल का सौदा किया था कि 80 लाख के करीब हम राइफलें वहां से लेके आ रहे, तो 1 लाख सप्लाई करने के बाद बाकी की राइफलें जो है भारत में ही होगी, जिससे भारत के लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और टेक्नोलॉजी के लिए हमें दुनिया के दूसरे देश के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला जो कार्य है वो एक बहुत बड़ा कार्य है कि भारत में ही उनको अगर मेंटेनेंस करना है, उनको अगर आगे ओवरऑलिंग करना है, तो सारे जो उनको बेस वर्कशॉप है वो सारे भारत में, जिससे कि हमारी जो डिफेंस की क्षमता है एज इट इज, हमने आज इतने वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। दुनिया के कई देशों के साथ डील करते हुए हमारा हथियार भी इतना जो आज दुनिया के देश उनको खरीद रहे हैं। तो आज ये कहा जाए इकोनॉमिकल साइड से भी आज पाकिस्तान की हालत $8.2 बिलियन सिर्फ फॉरेन रिजर्व उसके पास बचा है, और आज भारत के पास $686 अरब का विदेशी भंडोर है। तो उससे ये कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक साइड से भारत को आज भारत दुनिया का 3रे नंबर तक पहुंच चुका है, और आने वाले समय में नंबर 1 पोजीशन में होगा। ये आप और हम सभी जानते हैं। जब तक पूरे भारत के लोगों का साथ नहीं होगा, भारत के लोग एक साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे, तो स्टेज तक पहुंचना कोई हमारे से दूर नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जो बड़ा होने जा रहा है पूरी दुनिया देखेगी। धीरे धीरे दुनिया के देश बोल रहे हैं कि डायरेक्ट अटैक मत करो, धीरे धीरे स्लोली काम करो, जैसे बट स्लोली मोदी जी रोज एक इंजेक्शन दे रहे, रोज एक इंजेक्शन दे रहे, रोज एक इंजेक्शन दे रहे, और इनकी नींद उड़ी जा रही है।
सारे लोग जो हताशा, निराशा और टेंशन, स्ट्रेस, ये तमाम प्रकार की बीमारियां आज पाकिस्तान के, आप कोई भी चैनल पाकिस्तान का खोल करके देख लो, उसके अंदर अगर उनके वहां जो भी लोग हैं कि आज इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, आज कश्मीर में इंडिया ने इतनी तरक्की करी, आज इंडिया ने इसरो आसमान में इतनी तरक्की करी, चांद पर पहुंच गए, और हम कहाँ हैं? हम यहाँ उग्रवादी पैदा कर रहे हैं, लोगों को उग्रवादी यहाँ से टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं, लोगों के पास भेज रहे हैं। आज हमारे को खानों को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, ये और हमारे ये हुक्मरान जितने भी है बड़े बड़े घर बना के, किसी के लंदन में 4 घर है, किसी का अमेरिका में 2 घर है, किसी का सऊदी अरबिया में, किसी का दुबई में है। तो ये लोग करते क्या है? लोगों का शोषण, लोगों के साथ भ्रष्टाचार। अपने देश के बारे में किसी को कोई नहीं। जैसे रिटायर हुआ बाजवा कहाँ है? देखिए बाजवा कहीं आया अभी तक? अभी तक बाजवा जो है एक पाकिस्तान का बड़ा जनरल होता था। आज पाकिस्तान की इतनी इंस्टेबिलिटी है कि 14 अगस्त 1947 के बाद आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में कोई दुनिया का देश आकर के इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहेगा। वो इसलिए नहीं करना चाहेगा कि जिस देश के अंदर स्टेबिलिटी ना हो तो किस गवर्नमेंट का हम भरोसा कर सके। आज भारत के अंदर हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है आज 11वां साल के अंदर प्रवेश कर चुकी है और इतना अच्छे तरीके से काम कर रही है। पूरा देश को कहा जाता है नरेंद्र मोदी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। जिस प्रधानमंत्री ने आज तक एक दिन की भी छुट्टी ली नहीं है, जिसकी मदर एक्सपायर होने के तुरंत बाद 3-4 घंटे में फंक्शन को अटेंड करके फिर 12 बजे के तुरंत बाद जो है वो देश के कामों में लग जाता है। इतना मतलब डे नाइट काम, 18 घंटे 20 घंटे काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचता है। देश के सिवा उसको आगे कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिला है, उनका जो है डायरेक्शन मिल रहा है, उनका गाइडेंस मिल रहा है, उनके टोटली उनके यूं कहा जाए कि उनके द्वारा जिस प्रकार से उन्होंने विदेश नीति, कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनका तालमेल, देश के साथ तालमेल, तमाम अधिकारियों के साथ तालमेल, इन सारी चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि ये युद्ध के अंदर हमें बिना युद्ध किए हुए पाकिस्तान के 4 टुकड़े मिलेंगे। बलूच का तो अभी बहुत ही जल्दी वो आजाद होने वाला है, उधर खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, इधर सिंध वाले अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बचा क्या है? एक पंजाब बचा है। तो ये 4 टुकड़ों में पाकिस्तान बंटना निश्चित है। 1971 में एज इट इज पूर्वी बंगाल एंड पश्चिम बंगाल अलग होकर के बांग्लादेश का नया जन्म हुआ और पाकिस्तान उससे अलग हो गया। अभी बस ये मौका आ गया है, इसमें या तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हट जाएगा और 4 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो इसके बाद उसका दुनिया के अंदर कहाँ रहेगा? आज दुनिया के अंदर स्थान आप देखिए, अलग थलग दुनिया का कोई देश उसको हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, न तो रशिया न चाइना। चाइना तो किसी भी हालत में उसको मदद नहीं करेगी, मैं लिख के आपको गारंटी के साथ बोलता हूं। आज बेशक उसने पाकिस्तान में जो ग्वादर तक लेकर के गए हैं जो उनका सिपैक, बट बलूच आर्मी वाले बोलते किसी भी हालत में हम इस पे ये जो सिपैक को बनने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा सकते कि इतना करोड़ों अरबों रुपए का, खरबों रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और चाइना कभी भी भारत के साथ अपने रिश्ते खराब इसलिए नहीं करेगा कि 24-25 का उनका 1 to 7.6 बिलियन डॉलर का बिजनेस भारत के साथ, और भारत भी चाइना के साथ 113.6 बिलियन डॉलर उनके साथ हमारा बिजनेस, यानी कि इनको अगर रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हमारा जो है चाइना के साथ है। चाइना कभी चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा, और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का अगर कोई ट्रेड है तो भारत के साथ। और भारत भी नहीं चाहेगा कि कम दामों में, मास में, सस्ते में अगर हमारे पास जो सामान आ रहा है, जब तक कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं तब तक हमें चाइना से ये सामान लेना पड़ेगा। वो लागत चाइना जो बना करके भेज रही है, 10 रुपए की आइटम वो 5 रुपए में आपको दे रही है, तो भारत क्यों नहीं लेगा? बिल्कुल। तो ये जो एक एग्रीमेंट है, जिस हिसाब से चाइना
इंटरनली मदद तो करनी पड़ेगी, क्यों ऐसे ही उसने सिर ओखली में डाल रखा है। इतना इन्वेस्टमेंट करके जो इंस्टेबल गवर्नमेंट के साथ आपने सोचा कि मैं इसको कब्जा कर लूंगा, ये तो बहुत दूर की बात है। तो ये हालत है और ये सिचुएशन है। બિલકુલ બિલકુલ મનન સર પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। મનન સર, જે રીતે આપણે વાત કરી મકવાણા સરે કે જે રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલ પર પણ અત્યારે જે ભારતનું નામ છે તે હવે ખૂબ આગળ અને એક વડાપ્રધાનનું પણ એક વૈશ્વિક નેતા તરીકે તેમની એક ઓળખ ઊભી કરી રહ્યા છે, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય રિલેશન કે જે ફોરેન રિલેશન્સ માટે ભારત અત્યારે ખૂબ જ મહેનત કરી છે અને તે ક્યાંક ક્યાંક સફળ થતી પણ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। તમામ દેશો સાથે અત્યારે ખૂબ જ સારા સંબંધો ભારતના છે। તો આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ જે તટસ્થ જે અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે અને તે જ જે દ્રષ્ટિકોણથી આપણે જોઈએ તો ભારત માટે અત્યારે ખુલ્લી છૂટ જોવા મળી રહી છે કે કેમ, શું ભારત જવાબી કાર્યવાહી માટે અત્યારે તમામ દેશોનો સપોર્ટ લઈ શકે છે, શું તેમને મળી રહી છે? આપણે સમજવું રહ્યું કે હંમેશા વૈશ્વિક સ્તરે જો વાત હોય ને તો જ્યારે રશિયાએ હુમલો કર્યો યુક્રેન પર કે પછી ઇઝરાયેલે હુમલો કર્યો ગાઝા પટ્ટી પર, તો એના સપોર્ટમાં અમેરિકા, સપોઝ ઇઝરાયેલ સાથે અમેરિકાના એક અતૂટ સંબંધો છે, એવા સંબંધો ભારતના કોઈ જ દેશ સાથે નથી। ભારત એક નોન અલાઇડ મુવમેન્ટમાં માનતું નોન અલાઇડ નેશન છે, છતાંય અમેરિકાએ ભારતને એનો સપોર્ટ જાહેર કર્યો છે। આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ડિપ્લોમેટિક એક્શન્સ ભારતે કર્યા છે અને આપણા જે વિદેશ મંત્રી શ્રી એસ જયશંકર છે એમણે હી હેઝ રીચ્ડ આઉટ ટુ એવરી નેશન પોસિબલ ઇન્ક્લુડિંગ યુએન। પણ લડાઈની જ્યારે વાત આવે તો સંઘર્ષની વાત આવે તો બધાએ પોતાની લડાઈ જાતે લડવાની હોય છે। આજુબાજુમાં પાડોશીઓને જોઈને કે પછી મિત્ર દેશો સામે જોઈને લડાઈ લડવું ભારતને પોસાય નહીં। ભારતે પોતાની મુનસફી પ્રમાણે અને આપણે આતંકના પરપેટ્રેટર્સને ક્યાં સુધી પનિશ કરવા છે, શું કરવા માગે છે ભારત, એ નિર્ણયો જે લેવાયા છે પોલિટિકલ લેવલે, એ નિર્ણયોને બહુ વેરી વેલ એક્ઝિક્યુટ આપણી સેનાની 3 પાંખોએ જેમને આદેશ મળશે એમણે કરવાના છે। એ આજુબાજુમાં જોઈને કે મિત્ર રાષ્ટ્રો તરફ જોઈને જો ભારત એક્શન કરવા માગે તો દરેક દેશનું, રશિયા ભારતનું ઓલ વેધર ફ્રેન્ડ રહ્યું છે। અમેરિકાએ ભારતને એકાદ એવું કહીએ કે થોડું ઇગ્નોર કરીએ તો સંપૂર્ણ સપોર્ટ ટેરર વિરુદ્ધની લડાઈમાં જાહેર કર્યો છે। પણ અમેરિકાને સહારે કે પછી રશિયાને સહારે ભારત એમની તરફ જોઈને પાકિસ્તાન ઉપર હુમલો કરે એ શક્ય ન બને। ભારતે જે કરવાનું છે એ પોતાના મિલિટરી માઇટથી અને પોતાની હિંમતથી કરવાનું છે। પછી વિશ્વ આપણી સાથે ઊભું રહે કે ન રહે, કેમ કે વિશ્વના દરેક દેશનો પોતાનો સ્વાર્થ છે। એટલે ભારત સાથે જે વૈશ્વિક સંબંધો જે દેશો રાખે છે, પછી અમેરિકા હોય, રશિયા હોય કે પછી ચાઇના હોય કે જાપાન હોય, આ બધા દેશો પોતાના સ્વાર્થથી એમના સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટને લીધે અલગ અલગ દેશો સાથે સંબંધો રાખે છે। એટલે ભારતની સાથે જે દેશોના સંબંધો છે એ એટલા માટે છે કે એમને ભારતમાં એક સારી ઇકોનોમી દેખાય છે, એક સ્ટેબલ ગવર્નન્સ દેખાય છે અને બહુ મોટી માર્કેટ દેખાય છે। આ તો હકીકત છે। ભારત જેવી મોટી ડેમોક્રેસી અને આવડી મોટી માર્કેટ, આટલા બધા યુવાનો બીજા કયા દેશ પાસે છે, ખરેખર વિચારવા જેવું છે। એટલે આ બધા દેશોને ભારતમાં રસ છે એના ઘણા બધા કારણોમાંથી એક કારણ આ પણ છે। હા, ઓલ્ધો ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા, ભારતીય એમ કહી શકે કે વિદેશમાં રહેતા ભારતીયો ઘણા દેશોમાં છે અને એ લોકો પણ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી રહ્યા છે, પણ ભારત એક શક્તિશાળી રાષ્ટ્ર તરીકે પોતાની મિલિટરી માઇટનું પ્રદર્શન કરવાને બદલે બીજા દેશો તરફ જોવે એવું મને લાગતું નથી। બિકોઝ જ્યારે તમે આજુબાજુ જોવાનું ચાલુ કરો છો ને ત્યારે તમારો જે રિસ્પોન્સ છે એ નબળો પડી જવાના ચાન્સ રહે છે। એટલે જે લોકોને એમ લાગતું હોય કે ના, આપણા ડિપ્લોમસી કે આપણે જે રીચ આઉટ કરી રહ્યા છે, આપણા જે વિદેશ મંત્રી લોકો પાસે, અલગ અલગ દેશો પાસે જઈ રહ્યા છે, એનું હા, ઓલ્ધો એમનો સપોર્ટ આપણે સીક કરીએ છીએ, પણ ભારતની પોઝિશન શું છે આ આતંક વિરુદ્ધની લડાઈમાં? જ્યારે પાકિસ્તાને ભારત પર આતંકી હુમલો કર્યો છે, ભારતના નિર્દોષ પ્રવાસીઓને માર્યા છે, આની પહેલાના આતંકી હુમલાઓને વિશે પણ વાત થઈ રહી છે। કાશ્મીરમાં હાઉ દે આર બ્લીડિંગ, કેવી રીતે કાશ્મીરનો આપણે 370ની કલમના નાબૂદી પછી 2019 પછી જે વિકાસ કર્યો છે એ વિકાસની વાત કરી રહ્યા છે। એટલે આ બધી વાતો કાશ્મીરીઓ શું ઝંખે છે એ તો બધું પબ્લિકમાં આવ્યું છે। હવે
કે આ કાશ્મીરના લોકોએ છેલ્લા 5-6 વર્ષમાં જે વિકાસ જોયો, જે પ્રવાસીઓના ધસારાના લીધે આજે જે લોકોના ઘરમાં પૈસા આવ્યા છે, જે સુખાકારી આવી છે, એ સમજ્યા છે કે 370 શું નુકસાન હતું અને પાકિસ્તાનમાં રહેલું, પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર જે પાકિસ્તાન કબજાવીને બેઠું છે, એ લોકોની શું ફાઇનાન્શિયલ હાલત છે એ શું આ કાશ્મીરીઓને નથી ખબર? એમના કેટલાય સગા ત્યાં રહે છે અને આજકાલ સોશિયલ મીડિયા અને ટેલિફોનથી એ બધા એકબીજાના ટચમાં છે. એ સમજે છે કે ભારત એટલે વિકાસ, ભારત એટલે સુખાકારી. એટલે કાશ્મીરીઓ ની વાત પણ કે ભાઈ કાશ્મીર ભારતમાં છે, ભારતનું એક મહત્વનું અંગ છે, એ જેને પાકિસ્તાન સેવર કરવાની, એમાં અનરેસ્ટ ફેલાવવાની કોશિશ કરે છે. આ વાત લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. આ ભારતની નબળાઈ નથી. આપણા મિત્ર દેશોને મળવું ને આપણી વાત ક્લિયર કરવી એ આપણી નબળાઈ નથી. ભારત પોતાના મિલિટરી એક્શન્સ કોઈ પણ પ્રકારના બાહ્ય દબાવ વિના, પછી એ યુનાઇટેડ નેશન્સ હોય કે તાજેતરમાં રશિયાનું નિવેદન કે ના ભારતે પાકિસ્તાન સાથે વાત કરવી જોઈએ, કેમ કે હવે રશિયા જેમ નબળું પડતું ગયું, યુક્રેનનું લડાઈ હોય કે પછી પોતાને અમેરિકાને લીધે રશિયા એક રીતે એકલું અટલું પડી ગયું છે, ત્યારે રશિયા પણ ચાઇનાને લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક પાકિસ્તાન તરફ ઢળી રહ્યું છે. રશિયન ઇકોનોમી હવે એવી રોબસ્ટ નથી રહી, કેમ કે એમણે એમના દ્વાર વિશ્વ માટે ખોલ્યા નહોતા. એમનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કહો કે પછી એક રીતે એમ જોવા જાવ કે મિલિટરી મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પણ રશિયા ક્યાંક ને ક્યાંક પાછળ પડતું રહ્યું છે. એટલે ચાઇના આપણે જાણીએ છીએ કે ચીન એના વ્યાપારિક હિતોને લીધે ભારત પર, પાકિસ્તાન જ્યારે ભારત સાથે સીધા સંઘર્ષમાં ઉતરશે ત્યારે ચીન એને મદદ નહીં કરે. પણ આપણે જોયું છે કે છેલ્લા 9 વર્ષની વાત કરું હું, એટલે કે 2015 થી 2020 અને 2020 થી 2024 સુધી, એટલે ગયા વર્ષ સુધી, તો ઓન એન એવરેજ 79 થી 80%, એટલે પહેલા 15 થી 20માં 74% અને છેલ્લા 4 વર્ષમાં 81% ચાઇનાએ પાકિસ્તાનને એના આર્મ ફોર્સિસ માટે, એટલે મિલિટરી માટે સપ્લાઈઝ આપ્યા છે. પછી એમાં અત્યાધુનિક J-10 7E ફાઇટર જેટ્સ હોય, JF-17 બ્લોક 3 ફાઇટર્સ હોય, જે એમણે પાકિસ્તાનની સાથે ત્યાં મળીને બનાવ્યા છે, કે પછી HQ-9 સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ સિસ્ટમ હોય, કે પછી VT-4 બેટલ ટેન્ક્સ હોય અને હંગોર ક્લાસની સબમરીન હોય. ચીન એવી રીતે જોઈ રહ્યું છે કે ભારતનું જે મિલિટરી માઇટ છે, ભારતને સાઉથ ઇસ્ટ એશિયામાં કંટ્રોલ કરવા માટે પાકિસ્તાન એક સસ્તો ઓપ્શન છે. ચીને ભારતની LAC પર ભારત જ્યારે દબાવ વધારે ત્યારે પાકિસ્તાનને ફંડિંગ કરીને, પાકિસ્તાનને વેપનાઇઝ કરીને ભારતને નબળું પાડવા માટે એક નવો એંગલ ચીન શોધી રહ્યું છે. એટલે ડાયરેક્ટ નહીં પણ ઇનડાયરેક્ટ સપોર્ટથી ચીન પાકિસ્તાનને બેઠું થવામાં મદદ કરી રહ્યું છે. જી બિલકુલ, જી કોષાગ્રભાઈ. બિલકુલ મનન સર, આભાર આપ અમારી સાથે જોડાયા, અને મકવાણા સર આપનો પણ આભાર, બંનેનો આભાર અમારી સાથે ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ. ત્યારે એક બાદ એક જે પાસાઓ છે તે અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે, સામે આવી રહ્યા છે, અને ભારત પણ છે તે આક્રમક રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અત્યારે પાકિસ્તાન સામે કડક વલણ અપનાવી રહ્યું છે. હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.